Let us read one beautiful verse which is in Luke chapter 17 verse 20. और लूका के सुसमाचार 17वां अध्याय उसके 20वें वचन को हम पढ़ेंगे। Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय 20 और 21 में पढ़ रहा हूं। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। See, without your relationship with God, what really happens is you are vulnerable for a negative emotion against this love to root and to be rooted in you. और अगर परमेश्वर के साथ आपका संपर्क नहीं है तो इस प्रेम के विरुद्ध ही आपकी भावना बढ़ती जाएगी, जो आपके जीवन में एक जड़ लेते जाएगा। This negative mindset, negative emotions, negative mindset actually destroys us. और ये जो नकारात्मक मनस्थिति है, ये नकारात्मक हृदय की अवस्था है, ये हमारा हकीकत में नाश करता है। Even believers who are not understanding this love of God, they also develop this negative emotion, negative mindset. और जो विश्वासी जन भी है, जो ऐसे ही परमेश्वर की इस भावना को नहीं पहचान पाते, वो ऐसे ही नकारात्मक मनस्थिति को अपने जीवन में पाते हैं। Negative emotions is a destructive mindset. और नकारात्मक जो भावनाएं हैं, वो नाश करने वाली भावना है। It always comes from sin. वो हमेशा पाप से ही आगे बढ़कर आता है। Today I want to give you a homework. और आज आपको घर पर करने के लिए काम मैं देता हूं। Whoever you are, you go on Google and type Genesis chapter 3. और आप चाहे जो भी क्यों ना हो, आप गूगल में जाकर ये टाइप करें उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। You see what really happened to man and his wife after they sinned. और आप देखिए कि आदमी और औरत के साथ क्या हुआ जब उन्होंने पाप किया। They started to blame each other. वो एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। They started to blame the surroundings. और जो उनकी इर्द गिर्द की परिस्थिति थी उस पे दोष लगाने लगे। They started to even blame God. वो परमेश्वर पर भी दोष डालने लगे। They began to be afraid. वो डरने लगे। They began to suspect. वो शक करने लगे। They began to be worried. वो चिंता करने लगे। They began to receive pain in their bodies. अपने शरीर में दर्द का एहसास करने लगे। They started to feel the pain in their mind. और वही दर्द को अपने मन में भी भरने लगे। They started to hide themselves. वो अपने आप को छुपाने लगे। They started to, cover themselves with what is not right. और जो बातें सही नहीं है उन बातों से अपने आप को ढांपने लगे। So every negative emotion came into them automatically the moment they sinned. और ये सारी नकारात्मक जो भावनाएं हैं वो तभी शुरुआत हुई जब उन्होंने पाप किया। Now what is sin? अब पाप क्या है? When you go against the commandment of Jesus Christ, that is sin. जब आप यीशु मसीह के आज्ञा के विरुद्ध जाते हो, वो पाप है। What is that commandment of love? और वो प्रेम का आज्ञा क्या है? The moment you do anything against the love of God, you sin. और आप परमेश्वर के इस प्रेम के विरुद्ध जब कुछ भी करते हो तो वो पाप है। It becomes a negative emotion. वो एक नकारात्मक भावना बन जाती है। Okay? Negative emotion is a destructive mindset. और नकारात्मक ये जो भावना है वो नाश करने वाली मनोस्थिति है। Fear of future is a negative mindset. भविष्य के विषय भयभीत रहना ये नकारात्मक मनोस्थिति है। Fear of failing is a negative mindset. और हारने से डरना ये एक नकारात्मक मनोस्थिति है। Worry is a negative mindset. चिंता एक नकारात्मक मनोस्थिति है। Anxiety is a negative mindset. और अधिक चिंता करना ये नकारात्मक मनोस्थिति है। Anger is a negative mindset. क्रोध ये नकारात्मक मनोस्थिति है। Now the world is full of this. और ये दुनिया तो इससे भरी हुई है। Sometimes even believers are full of this. कई बार तो विश्वासी जन भी इससे भरी हुई है। All this negative mindset
destructive mindset comes out of a negative emotion. और ये सारी नकारात्मक मनस्थिति एक नकारात्मक भावना से होकर It आती है, eventually comes actually from a sin. और ये हकीकत में पाप से होकर आती है। The sin is violating the love of God. और ये जो पाप है ये परमेश्वर के इस प्रेम को तोड़ना है। So it's a very costly price we human beings we pay for sin and the wrong emotions and the destructive mindset. और ये बहुत ही महंगा दाम सारा इंसानियत चुकाता है इस पाप के बदले और इस नकारात्मक मनस्थिति के बदले और ये नाशहीन भावनाओं के बदले। In fact, medical science talks a lot about this negative emotions. सचमुच ये जो मेडिकल साइंस है ये नकारात्मक भावनाएं जो है इनके बारे में कई बातें कहती है। Yeah, I will read something which I gathered from the medical science. और मेडिकल साइंस से कुछ बातें मैंने जो साथ में जोड़ा है, इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। Many doctors say that our worries produce uneasiness. और कई डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारी जो चिंता है हमारे अंदर अस्वस्थता पैदा करती है। This uneasiness produce panic attacks. और ये जो अस्वस्थता है ये पैनिक अटैक्स निर्माण करता है। Our worries bring depression. और हमारी जो ये चिंता है ये निराशा को लेकर आती है। It makes us negative personality. और हमें एक नकारात्मक व्यक्तित्व वाले मनुष्य बनाता है। Look at the negativity in everything. और वो हर एक वस्तु को नकारात्मक भावना से ही देखता है। Okay, now everything begins with lovelessness. और ये सारी बातें प्रेम का ना होना इससे ही शुरुआत होता When you है। cannot love like God, that means that is the beginning of your ruin. और जब आप परमेश्वर के समान ही प्रेम नहीं कर पाते वो आपके नाश की शुरुआत है। Now our worries takes different forms. अब हमारी जो चिंता है ये अलग अलग रूप लेता है। Worried person becomes a negative personality. और जो चिंता से भरा हुआ व्यक्ति है वो एक नकारात्मक व्यक्ति बन जाता है। Some of the worried guys becomes very good at criticism and a judgmental attitude. He carries a judgmental attitude. और कुछ ऐसे लोग जो ऐसे नकारात्मक व्यक्तित्व है वो ऐसे ही दूसरों पर न्याय देने वाले लोग बन जाते हैं, दोषी ठहराने वाले लोग बन जाते हैं। Some people because they are worried they become controlling and dominating people. और कुछ लोग क्योंकि वो इतना चिंता करते हैं वो बहुत ही नियंत्रण करने वाले लोग बन जाते हैं, वो बहुत ही अधिकारी बनने वाले लोग बन जाते हैं। So doctors say worry is a progressive disease which usually ends in death. और डॉक्टर इस प्रकार कहते हैं चिंता जो है ये आगे बढ़कर जाकर मृत्यु में अंत होता है। Because worry actually destroys our immune system. क्योंकि चिंता जो है हमारी रोग प्रतिशोध करने वाली जो सिस्टम है हमारी शरीर को उसे नाश कर देता है। So racism is not good for you. तो जातिवाद जो है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। Casteism is not good for जो you. कास्ट अलग अलग कास्ट में विभिन्न बंटवारा है ये आपके लिए सही नहीं है। Worry is not good for you. चिंता आपके लिए सही नहीं है। If you are a man who loves only a small group of people, I tell you, your immune system is going to fail in you. और अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हो जो एक छोटे समूह से ही प्रेम कर पा रहा है तो आपसे मैं ये कहता हूं कि आपकी जो रोग प्रतिशोध शक्ति है ये घटती जाने वाली है। So racism is just loving few people and hating the rest. और ये जो जातिवाद है ये कुछ लोगों से प्रेम करता है और बाकी सारे लोगों से नफरत करता है। In a long run it will reduce your immune ability and it will take you closer to your death. और लंबी दौड़ में ये आपके रोग प्रतिशोध शक्ति जो है उसे घटाकर आपको मृत्यु के और निकट ले जाएगी। And a very famous doctor called Mayo, he said worry affects your circulatory system, your heart and your nervous system. और जो बहुत जाने माने एक डॉक्टर मायो करके है वो कहते हैं कि जो चिंता है ये आपकी सारी सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके रक्त बहने की जो सिस्टम है और आपके नस की जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है उसे उस पर प्रभाव डालती है। So many times the problem is not your actual physical body,
The problem is your mind. और तो कई बार आपकी जो शरीर है वो आपकी परेशानी नहीं है, बल्कि जो आपका मन है वो आपकी परेशानी है। Many times it is not your actual body, it is actually your spirit which you are carrying. और कई बार जो आपका शरीर है वो परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो ही परेशानी है। So all these actual negative emotions is against God's love. तो ये सारे जो नकारात्मक भावनाएं हैं ये परमेश्वर के विरुद्ध है। Today, if you are suffering from a negative emotion, अगर आज आपके जीवन में आपको एक नकारात्मक भावना आपके जीवन में है, there is only one thing which you are suffering with. तो एक ही बात से आप पीड़ा सह रहे You हो। are not able to love everybody. आप सभी से प्रेम नहीं कर पा रहे हो। You are not able to accept everybody. आप सभी को स्वीकार नहीं पा रहे हो। If you are not able to love everybody and accept everybody, अगर आप सभी से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, सभी को स्वीकार नहीं पा रहे हो, I want to say this to you मैं today. ये आपसे आज कहना चाहता हूँ, You need to turn to God. आपको परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। Only God can give us that love. केवल परमेश्वर ही आप ये प्रेम दे सकता है। You cannot shield yourself in any negative emotion. और आप कोई भी नकारात्मक भावनाओं के पीछे ढाल नहीं ले सकते हो। When the world is divided and butchered and murdered by different racism and casteism and upper caste and downward caste and this and that, I tell you, there is only one treatment which God has for everything. और जब सारी दुनिया का नाश इसी जातिवाद के वजह से, ये उच्च जात और नीच जात के वजह से, ये अलग विभिन्न प्रकार के कास्ट के वजह से हो रहा है, मैं कहता हूं कि केवल परमेश्वर ही हमें इस सारी बातों से छुड़ा सकता There is है। only one treatment for untouchability. और अछूत की बात जो है उसके लिए केवल एक ही ट्रीटमेंट है। You get connected with God. आप परमेश्वर के संपर्क में आए। When you connect with God, He will pour His love inside of you. और जब आप परमेश्वर के संपर्क में आओगे तो परमेश्वर अपने प्रेम को आपके अंदर डालेगा। In fact, that is what happens. That is the commandment of Jesus Christ. और यही यीशु मसीह का आज्ञा है। That is why the Holy Spirit is given to us. और इसी कारण पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। Romans 5:5 says, रोमियो की पत्री 5:5 कहता है, Holy Spirit is poured inside our hearts so that God's love is poured inside our heart. और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला गया है ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रह पाए। Jesus Christ came to give one commandment. और यीशु मसीह आए एक आदेश को लेकर। When you are suffering from hundreds of commandments from the religions, I tell you, Jesus replaced all the commandment with one commandment. जब धर्म से हम पीड़ा सह रहे हैं, इतने सारे हजारों आज्ञाओं से, यीशु मसीह आए और केवल एक ही आज्ञा आपको देते हैं। Holy Spirit came just to fill you with that one commandment. और पवित्र आत्मा आए आपको उस एक आज्ञा से भरने के लिए। Holy Spirit is not given to us so that whether to fight, whether you have the Holy Spirit or He has the Holy Spirit, whether you talk in tongues, you talk in tongues. This is not what we need to get into. और पवित्र आत्मा आपको इसीलिए नहीं दिया गया है ये जांचने के लिए कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तुम में नहीं है, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तुम नहीं कर पाते हो, इस कारण नहीं आए हैं। I talk in tongues. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। I am not against talking in tongues. मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के विरुद्ध नहीं हूँ। But that is not the purpose of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा का उद्देश्य वो नहीं था। The Holy Spirit is poured into me so that I can love like God. पवित्र आत्मा मुझ में उंडेला गया था ताकि मैं परमेश्वर के समान प्रेम कर पाऊं। There is a purpose for my creation. और मेरे सृष्टि का एक उद्देश्य है So that I can love like Jesus Christ. ताकि मैं यीशु मसीह के समान प्रेम कर पाऊं, So that I can reflect Jesus Christ. ताकि मैं यीशु मसीह को ही दर्शाऊं, So that I can get rid of my emotions, negative emotions. ताकि मैं अपने नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पा सकूं, So that I can live longer. ताकि मैं लंबी उम्र जी सकूं, So I can live healthier. ताकि मैं सेहतमंद जीवन बिता सकूं, I can work better. ताकि मैं बेहतर काम कर सकूं, I can earn better. ताकि बेहतर कमा सकूं, I can live like a king size, like God Himself. और एक राजा के समान, परमेश्वर के समान मैं जी सकूं। Because every human being has that kingdom of God inside of them. क्योंकि हर एक मनुष्य जाति में परमेश्वर का ये राज्य उसके अधीन है। The sooner you turn to God,
और जितना जल्द आप परमेश्वर की तरफ मुड़ते हो, the greater benefit you will have. उतना अधिक फायदा आपको होगा। What is the use of accepting Christ on your deathbed? और आपके मृतक अवस्था में अगर आप यीशु को स्वीकारते हो, इसका क्या फायदा? What is the use of just receiving Jesus Christ after your retirement? और आपके रिटायरमेंट के बाद यीशु मसीह को स्वीकारने का क्या फायदा? Still God can restore certain things. उसके बावजूद परमेश्वर कई बातों को फिर से बांध सकता है, God cannot restore your youth. लेकिन परमेश्वर आपकी जवानी को फिर से नहीं बांध सकता। God cannot restore the time you have already spent. और जो समय आपने व्यतीत कर दिया है उसे फिर से बांध नहीं सकता। Dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, today God has His principles everywhere. आज परमेश्वर के ये सिद्धांत सारे जगह पे स्थापित है। Wherever human beings violated, they were destroyed. और जहां कहीं भी इन सिद्धांतों को तोड़ा गया, उन इंसानियत की हत्या हुई। They were destroyed by earthquake or by floods or something or the other. और वहां पे उनका नाश बाढ़ के वजह से हुआ, भूकंप के वजह से हुआ, कुछ अन्य वस्तुओं की वजह से हुआ। Even as a human being, if you violate God's principle, और इंसान होने के नाते अगर परमेश्वर के इन सिद्धांतों को आप तोड़ते हो, definitely destruction will automatically come on you. निश्चित तौर पर नाश आपके जीवन पर उतर आएगा। Whether you are a believer or an unbeliever, चाहे आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो, whether you know Jesus or not, चाहे आप यीशु मसीह को जानते हो या नहीं, there is only one way I can escape many things in this world. एक ही मार्ग है जिससे आप इन सारी बातों से आप बच सकते हो। There is only one way I can be automatically healed by many multitude, almost every disorders which can come on my और body. केवल एक ही मार्ग है जिससे आप हर एक वस्तु से अपने आप का बचाव कर सकते हो। First is to know God. पहले तो है बात यह है कि आप परमेश्वर को जानें। Understand how I can be connected with Jesus. जानिए कि कैसे हम यीशु मसीह से संपर्क बनाएं। How can I make him a way for me to walk और कैसे मैं उसको एक मार्ग बनाऊं जिससे मैं चल पाऊं, so that I can reach God himself. ताकि मैं पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकूं। Jesus was a Jew. यीशु मसीह यहूदी थे He worked with the Greeks. और वो यूनानी लोगों से साथ बात कर रहे थे। He said the gospel to the Romans. और रोमियों के साथ वो सुसमाचार उन्होंने बांटा। Romans were his disciples. और रोमी जन उनके चेले थे। Greeks were his disciples. और यूनानी जन भी उनके चेले थे। Jews were his disciples. यहूदी लोग भी उसके चेले थे। In that country, all religious people were his disciples. और उस देश में सारे धर्म के लोग उसके चेले थे। Jesus came to deliver us from the clutches of religion. और यीशु मसीह आए ताकि धर्म के इस पंजों से हमें वो छुड़ा सके। The curse of tradition and all these formalities, meaningless traditions, he delivered us. और रीति रिवाजों के इन श्रापों से यीशु ने हमें छुड़ा दिया। In fact, the word of Bible is saying that religion is a decaying system. It is already decaying. और बाइबल में तो हकीकत में ऐसा लिखा है कि ये जो धर्म है ये नाश होते जा रहा है। No wonder many young people are disillusioned with religion. और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जवान लोग इस धर्म को लेकर बहुत ही वो चिंता में है, उनके कोई समझ में नहीं आ रहा। Only people who have subjected themselves to the control of religion and they are afraid of something, some human beings, they are only sticking on with religion. और जो केवल वही लोग जो इस नियंत्रण के अधीन आ जाते हैं, जो इससे डरते हैं, वही इस धर्म के पीछे चलना चाह रहे हैं। Who wants to wear that fancy dress every time? और कौन चाहता है कि ऐसे विभिन्न प्रकार के वेशभूषा वो डालते चले। Bold people have kicked religion out of them. और जो धैर्यशील लोग हैं उन्होंने अपने जीवन से उस धर्म को निकाल ही दिया है। Ask the young people, see the young people, they are running after relationships. और आप जवानों को देखें, वो विभिन्न रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं। Young people can be satisfied only with relationships, not with religion. और जवान लोगों को केवल आप रिश्तों से तृप्त कर सकते हैं, कोई धर्म से नहीं। Bold people who can see can only be satisfied by relationship, by religion. धैर्यशील लोग केवल जो बातें जो देख सकते हैं उनसे वो तृप्त हो सकते हैं, ना कि कोई धर्म से। The real relationship which we can have is with God himself. जो हकीकत का रिश्ता है वो हम केवल परमेश्वर के साथ ही कर पाएंगे। Today is a time where if you are listening to me, let us renew this relationship with God. और आज वो समय है, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो हम अपने इस रिश्ते को फिर से बांधे। Jesus Christ came and gave a new name for God. और यीशु मसीह आए और एक नया नाम दिया। He is no longer called as God.
और उसे अब परमेश्वर हम नहीं कहते, He is called as a father. उसे हम पिता कर कर पुकारते हैं। God is a very official term which religion uses to make you afraid. और परमेश्वर ये जो नाम है बहुत ही ऑफिशियल नाम है, और ये धर्म हमें सिखाता है ताकि हम उससे डरते रहे। Every religion says like this: if you dribble with God, He will take out your eyes. और सब धर्म यही सिखाते हैं कि अगर तुम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करोगे वो तुम्हारी आंखें नोच लेंगे, He will beat you with whips और तुम्हें कोड़ों से मारेंगे, and ultimately put you in hell. और आखिर में तुम्हें नरक में डाल देंगे। Jesus Christ came to say God is no longer God. He may be a God of the world, but for us He is a Father. लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि वो शायद दुनिया के लिए परमेश्वर हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो पिता है। When I was a young man, I was disillusioned with religion. जब मैं एक जवान व्यक्ति था, मैं इस धर्म को लेकर बहुत ही गड़बड़ी में था। I left my father's religion मैंने अपने पिता के धर्म को छोड़ दिया and I started to search for God, for a relationship. और मैं परमेश्वर को और उसके साथ रिश्ते के लिए मैं खोज करने लगा। There are many people I met on the way, but ultimately I met God. रास्ते में मैं कई लोगों से मिला, लेकिन आखिर में मैंने परमेश्वर से मुलाकात की। I understood God loves me. मैं ये समझ गया था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते Today हैं। you should understand God loves you. आज आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। No matter which religion you come from, you should understand first God loves me. चाहे आप किसी भी धर्म से क्यों ना आ रहे हो, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Many religion doesn't talk that God is love. और कई सारे धर्म ऐसे हैं जो ये नहीं सिखाते कि परमेश्वर प्रेम है। Many religion teaches God takes revenge on you. If you dribble with Him, He will finish you off. और कई सारे धर्म ये सिखाते हैं कि परमेश्वर जो है वो आपके विरुद्ध कार्य करने वाले हैं, अगर आप उससे खिलवाड़ करते हो तो वो बदला जरूर लेते हैं। Today many people are in religion because they are afraid of God. और आज कई सारे लोग धर्म का पालन कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। They are not bold enough to ask questions. वो इतने धैर्यशील नहीं है कि वो सवाल कर पाए। God is a personal God. लेकिन परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर कार्य करने वाला He परमेश्वर है, personally talks to us. और व्यक्तिगत तौर से हमसे वो बात करता है। Look at Adam and Eve. आदम और हव्वा को देखे, They talked to God. वो परमेश्वर से बात They करते heard थे, God. वो परमेश्वर की सुनते थे, Carried His presence. वो उसकी उपस्थिति लेकर They चल रहे carried His थे image. और उसके स्वरूप को लेकर They चल रहे looked like थे Him. और उसकी समानता में They दिखते worked थे, like Him. उसके समान कार्य कर They had रहे an थे assignment from और वो God. परमेश्वर का कार्य पूरा कर रहे थे, God was everything in their lives. और परमेश्वर उनके जीवन में हर सब कुछ था। If you are a young man अगर आज आप जवान हो, or a young lady, आप जवान स्त्री हो, I will encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना Today, चाहता हूँ, आज You connect with God. आप परमेश्वर के संपर्क में आए। First you say, God, if you love me, I want to love you. पहले आप ये कहे कि परमेश्वर अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो हम भी आपसे प्रेम करना चाहते हैं। Then you tell Him, God, you talk to me. और फिर आप कहे कि परमेश्वर तुम मुझसे बात करो। God will talk to you. परमेश्वर जरूर बात करेगा, No matter which religion you come. ताकि चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, God will talk to you. परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा, Because God loves you so dearly. परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। He will talk. वो जरूर There is बात no करेगा, doubt I have. इसमें कोई शक नहीं है मुझे। He found me when I was young. परमेश्वर ने मुझे पाया जब मैं जवान था, I have seen He found so many young people in this country, in this world. और मैंने देखा है कि इस देश में और इस दुनिया में भी परमेश्वर ने कई जवानों को पाया है। Wherever I go, I see God touching people. और जहां कहीं भी मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने लोगों को छुआ In है। every family, God has touched people. हर एक परिवार में परमेश्वर ने लोगों को छुआ है। In your family, God should have touched somebody. और आपके परिवार में भी अगर आप देखें तो परमेश्वर ने किसी ना किसी को छुआ है। And they have connecting with Jesus. You go and talk to them. और वो यीशु मसीह के संपर्क में है, आप जाएं और उनसे बात करें, Just don't shut them up. और उनको बंद कर दूर मत कर देना। You become willing to talk to them. आप इच्छुक हो जाए कि आप उनसे बात करें, Ask them why you took this decision. और ये सवाल पूछे कि तुमने ये निर्णय क्यों लिया, What you have got in return of that. और इसके बदले में आपको क्या मिला है। I tell you, when you receive God, you receive love. मैं आपसे कहता हूं कि जब आप परमेश्वर को स्वीकारते हो, आप प्रेम को स्वीकारते हो। When you receive God, sometimes you begin to cry. और जब आप परमेश्वर को स्वीकारते हो, कई बार ऐसे होता है कि आप रोना शुरू करते हो। When you receive God, there is a transformation in your mind. जब आप परमेश्वर को स्वीकारते हो, आपके मन में एक परिवर्तन आता है। Sometimes, you feel as if your burden goes away from you. और
कई बार आपको लगता है कि आपकी जो बोझा था वो आपसे दूर हो चुका है। Sometimes you feel so light in you कई बार अपने आप में आपको बहुत हल्का महसूस होता है, because God is so real. क्योंकि परमेश्वर इतने अद्भुत और हकीकत में If आते He हैं। is real, you will feel His reality. That is God. और क्योंकि वो हकीकत में है, उसकी वास्तविकता आप महसूस कर पाते And हो, your life will become real to you. और आपके जीवन भी वास्तविकता में बदल जाती Others है। can see something is changed in this fellow. और दूसरे लोग भी देख पाएंगे कि इस व्यक्ति में कुछ बातें बदल चुकी है, Something is changed in this girl. लड़की में कुछ बातें बदल चुकी है। Everybody will know. सारे लोग Your जान family लेंगे, will know. आपका परिवार जानेगा, Your friends will know. आपके मित्रगण जानेंगे, Your colleagues will know. आपके सहकर्मी जानेंगे। Even if you are a child of God, you are working in an office. और चाहे आप परमेश्वर के संतान हो और आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, Everybody in that department will know this guy is different. और उस डिपार्टमेंट में सारे लोग जानेंगे कि ये व्यक्ति अलग है। Not that he is very holy man, he is, dresses very holy. और ऐसा नहीं कि वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति है, बहुत ही पवित्र तरीके से वेशभूषा धारण करता है। There is a mindset this guy is having which is very different from any other mindset. और इस व्यक्ति की जो मनस्थिति है अन्य किसी भी व्यक्ति से बहुत ही अलग है। We look the same. हम उनके समान ही दिखते हैं, We have the same skin color. और हम चमड़ी की रंग भी एकदम We have सेम the समान same है, education. और एक समान हमने पढ़ाई की है। There's no change in the way we look. हम जिस प्रकार दिखते हैं उसमें कोई अलग बात नहीं है, But automatically that glory of God will come on you. लेकिन ऐसे ही परमेश्वर की महिमा आप पर उतर आएगी। Nobody will dribble with you. कोई भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। Then you realize your rights in God. फिर आप जानोगे कि परमेश्वर में आपका हक क्या है, And you will exhibit those things in your life. और उन बातों को अपने जीवन में आप दर्शाओगे। No longer you will become a football in the society, but you will be the decision maker of your society. और समूह के फुटबॉल आप नहीं बनोगे, बल्कि समूह के निर्णय लेने वाले व्यक्ति आप बन पाओगे। You become a decision maker of the society. और इस समूह के निर्णय लेने वाले व्यक्ति आप बन जाते हो। When you actually help many people to build their lives. जब आप कई सारे लोगों को उनके जीवन के बांधकाम में मदद करते हो, When you are not able to build yourself, you are not able to build yourself, your family, you are able to build so many people in the world. आप अपने आप के परिवार को आप बांधकाम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन केवल अपने आप के लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में अलग अलग लोगों के लिए आप कर पाते हो। Jesus said the kingdom of God is in you. यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम में है। I want to say the same thing. The kingdom of God is in you. मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुम में है। When you say yes to me, जब you आप- actually say yes to God. जब आप मेरे सामने हाँ कहते हो तो आप परमेश्वर को हाँ कहते हो। When you say yes to me, you actually say yes to your destiny. जब आप मेरे लिए हाँ कहते हो तो आप अपने भविष्य के लिए हाँ कहते हो। Are you sitting here wondering why I am not able to be successful in my life? क्या आप बैठकर ये सोच रहे हो कि मैं अपने जीवन में उन्नति क्यों नहीं पा रहा? Let me tell you, you are not able to be successful because you don't know what your destiny is. मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जीवन में उन्नति इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या है, Nobody can tell you that. और कोई भी आपको वो बता नहीं पाएगा। Only your creator can tell you that. केवल आपका सृष्टिकर्ता आपको बता सकता है। You cannot take the destiny of your neighbor as if it is your destiny. आप अपने पड़ोसी के भविष्य को लेकर ये नहीं कह सकते कि ये मेरा भी होगा। Just because in your college everybody is studying for some course, you are not going to study that course and pass that exam or course. और क्योंकि आपके कॉलेज में सारे लोग इसी कोर्स के अध्ययन कर रहे हैं, उसका अर्थ ये नहीं कि आप भी वही करोगे और उसे पास कर पाओगे। That is not the way you get into your destiny. इस प्रकार आप अपने भविष्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। You need to first connect to God. आप पहले परमेश्वर के संपर्क में आए Listen to Him. और उसकी बातों को सुने, May He say your destiny to you. और वो आपके भविष्य की बातें आपसे कहे। You have to connect to God today. और आपको परमेश्वर से संपर्क बनाना है आज। When you connect to God today, He will tell you your destiny. और जब आप परमेश्वर से संपर्क आज बनाओगे, वो आपको आपका भविष्य सुनाएगा। When I was a young man, everybody told me about my destiny. और जब मैं जवान व्यक्ति था, सारे लोगों ने मुझे मेरे भविष्य के बारे में कहा। My parents also told me about my destiny. मेरे माता पिता ने भी मेरे भविष्य के विषय कुछ बातें कही। I was running helter skelter everywhere. मैं इधर उधर भाग रहा था, In the bargain, I became a failure in my life. और इसके बदले में मैं एक हारा हुआ व्यक्ति बन चुका The था। day I connected with God, लेकिन जिस दिन मैं परमेश्वर के साथ संपर्क बनाया, I received His love.
मैंने उसके प्रेम को पाया। I tell you, I received my destiny. मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपने भविष्य को पाया। There was no running around. It is a restful journey. और यहाँ पे और फिर कोई भागना नहीं था, ये एकदम शांतिपूर्वक एक यात्रा बन गया। You only have to love everybody who comes in your way. और जो भी आपके रास्ते आते हैं उन सभी से केवल प्रेम करना था। Sometimes you may not be in a position to love, but you can ask the strength from God and love them. और कई बार ऐसे होता है कि आप में ये क्षमता है ही नहीं, कि आपके पास ये ताकत नहीं कि आप प्रेम कर पाए, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हो उस ताकत के लिए कि आप प्रेम कर सकते।